Namaste. Myself, Nirja S. Agrawal, TGT Science, Kendriya Vidyalaya number 1, Rewa. On the occasion of Fit India movement, wish to focus on importance of diet and nutrition in this period of pandemic, especially among students, staff, and parents. We often hear and say, health is wealth, healthy mind in a healthy body. Prevention is better than cure. We all want to remain fit and healthy throughout our life. None of us want to fall sick or endanger our life and go to hospital. None want to get hospitalized, eat bitter medicines or get prick of injections. By now, all of us know that how COVID coronavirus spread all over the world. What is the risk factor and how to control corona among the people. By using mask, we can control corona. Coronavirus disease, COVID has no cure till date. Prevention is only and the best remedy till date. If defense system of our body is strong, then corona is not able to harm it. The defense system of our body tackles and contains it well. We might get infected but won't get diseased. That have been seen only in those with comorbid conditions, dilated patients, and those with weak immunity. Hence, in present time, the greatest tool of fight COVID are number 1, prevention. Number 2, keep our immune system fit and strong. The best way to maintain our defense system are adequate, balanced, nutritious and timely diet, regular physical exercises, sports and yoga, remain mentally healthy, regular and adequate sleep, rest to allow body to repair and regenerate. What should be the diet during pandemic for students, staff and parents? Adequate, balanced, nutritious diet should contain rich sources of high quality protein, fat, minerals, vitamins, water, etc. Proteins are called bodybuilding blocks or bodybuilding food. The major part of our cells, tissues such as mucous membrane, lungs, muscles, heart, WBC, RBC. Antibodies, hormones, enzymes are also form of proteins. Fat are energy giving food. Parts of our cell structure is made by the fat. Carbohydrate plays an important role as a fuel. It is also energy giving food. Vitamins, facilitators for repairing, take part in our metabolism activity. Now minerals and micronutrients form parts of our enzyme, take part in metabolic activities. So important of water is as a transport medium. It helps maintaining integrity and viscosity. The structure of cells have good quality protein, carbohydrate and fats. Vitamins and minerals act as a catalyst for better functioning, repair of cells and tissues. As we can see here, glycoprotein, carbohydrate, glycolipid, cholesterol, proteins are most important role play in our cells and tissues. Now, structure of DNA and RNA. In our nucleus, DNA and RNA present. There is present sugar, different type of vitamins, thiamine, uracil and base. So here carbohydrate, fat, protein, vitamins play most important role in the structure of our nucleus. In Krebs cycle also, in glycolysis process, pyruvic acid formed by the glucose.
So, carbohydrate plays most important role in our Krebs cycle. Look at in the cell structure, in the mitochondria, lipid, protein, different type of micronutrient, vitamin C play an important role in our cell structure. What are the different sources of all essential nutrients? Depending on availability, preferences, liking, and socio-economic status, different food items can be selected. Proteins. The main sources of proteins are milk, milk products, soya milk, pulses, soya beans, dal, grams, cereals, almond, walnut, pista, egg, meat, and fish. The sources of carbohydrate are cereals, potato, jaggery, banana. Fats, vegetable oil, groundnut oil, mustard oil, sunflower, cottonseed, ghee, butter, nuts. These are the main sources. Now vitamins and minerals. Spices, dates, nuts, vegetables, fruits, seasonal fruit, oranges, apples, papaya, guava, pomegranate, amla, banana. Each fish, egg, meat play an important role in vitamins. Coconut, sprouted grains and pulses. These are the main sources of vitamins and minerals. We can choose from a list of what variety of food to suit our requirement as per our preferences. India is a diverse country, so availability of food items are different in a different area. According to socio-economic conditions, liking, disliking, cost of food, availability of food, according to age, according to food practices, we can choose our diet chart. It's not necessary each and everywhere people eat same type of food. For example, Jammu Kashmir people prefer the apple and hot drinks with rice. So in Rajasthan they can prefer pulses and dal as a dal bati and churma. So we can plan our diet chart according to availability of food, but we always prefer a balanced diet to keep fit and healthy our body. These are the main Ayurvedic ingredients. As our Ayurvedic charyas or Ayurvedic department says, prefer more yogurt and curd, more rich vitamin C fruit and vegetables, zinc fruit, zinc pulses, tulsi leaf, garlic, ginger and turmeric. These are the rich sources for avoid attack of coronavirus. In this pandemic period, the Ayurvedic department and Ayurveda chart are focusing on these food items. So we can prefer this food item according to our availability. So, safe schooling, eat healthy, keep healthy. If we are fit, we are hit. According to India Fit India movement, if we are taking this type of food item according to availability, we always fit ourselves and keep healthy ourselves. Remember, awareness is safety. Good immunity is the best medicine. In this corona period, good immunity is the best medicine. So we all keep ready to take balanced diet, rich food items and keep our body fit and healthy. Thank you. Have a nice day. सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं आकांक्षा मिश्रा कक्षा 11वीं बा की छात्रा आप सबके समक्ष फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। फिट इंडिया मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसके अंतर्गत लोगों को अधिक से अधिक शारीरिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत इंदिरा गांधी स्टेडियम से की गई थी। इस पहल का आगाज 29 अगस्त 2019 को
प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण के दौरान किया था। उनके अनुसार हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ जनों की आवश्यकता है। राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल कूद को प्रोत्साहित करना है ताकि वे उन्नति कर सकें। फिट इंडिया मूवमेंट से देश के युवाओं के साथ साथ सभी आयु वर्गों के लोगों को खाने पीने की आदतें बदलने और अधिक शारीरिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्वस्थ रहें और अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। पीएम मोदी जी का कहना है कि अगर हमारी बॉडी फिट रहेगी तभी हमारा माइंड फिट रहेगा। आप सबने तो सुना ही होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यदि किसी भी देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो ना उनका मस्तिष्क और ना उनका मन स्वस्थ रहेगा। यदि किसी भी देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो उनका मन और उनका मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेगा। यदि हमारे भारत देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो वह बेहतर सोचेंगे, अच्छा माहौल बनेगा और देश भी विकास की राह पर तेजी से चल सकेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि ना सिर्फ फिट इंडिया सप्ताह में ही बल्कि अपनी आदत डाल लें कि रोज हर दिन आधे घंटे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करेंगे। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं हर्षिता वर्मा फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज के बदलते समय में हमारी खान पान की आदतें भी बदल रही हैं, जिसके कारण हम बीमारियों से घिर रहे हैं। तो हमें अपने खान पान में कुछ चीजें शामिल करनी होंगी जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। सबसे पहला है बाजरा। बाजरे में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, ट्रिप्टोफैन, फाइबर, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। बादाम। माना जाता है कि बादाम खाने से हमारी याददाश्त बढ़ती है, लेकिन ये कई और रोगों को ठीक करने की इसमें गुण होता है। सबसे पहला है कब्ज, जो सर्दियों में अक्सर सबसे बड़ी दिक्कत होता है, इसको भी ठीक करता है। इसमें डायबिटीज को नियंत्रित करने का भी गुण होता है। ये विटामिन ए से भरपूर होता है। अदरक में कई एंटीवायरल तत्व होते हैं। ये हमारे शरीर को गर्मी देता है और पाचन तंत्र को सही रखता है। मूंगफली में होता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स। शहद। शरीर को निरोग, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए शहद को आयुर्वेद में अमृत भी कहा गया है। इसको हर मौसम में लेना लाभकारी है, लेकिन सर्दियों में इसे लेना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। इससे हमारी पाचन क्रिया सही रहती है और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सब्जियों में हम मौसमी सब्जियां ले सकते हैं और हरी सब्जियां अपने खाने में जरूर शामिल करना है, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मेथी, गाजर, चुकंदर, पालक, लहसुन, बथुआ, इन्हें तो जरूर शामिल करें। और जिन सब्जियों में जड़ होती है, जड़ वाली सब्जियां, जैसे चुकंदर में होता है कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट। और गाजर में होता है विटामिन सी, के, पोटेशियम, आयरन और कैरोटीन। मूली में होता है कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फाइबर। और शकरकंद में सबसे ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए इन्हें जरूर शामिल करें। अगला है मौसमी फल हमें जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि हो गया हमारा अमरूद, सिंघाड़ा, संतरा। सिंघाड़ा में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको जरूर शामिल करें। तिल से मिलता है हमें ऊर्जा, और तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में पीने से जमा हुआ कफ निकल जाता है। इसमें होता है प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कुछ चीजें थी जिनको हमें शामिल करना होगा, क्योंकि हमें अपना इम्यून सिस्टम जरूर बेहतर करना है और इस सर्दी हमें ये सब जरूर लेना है। धन्यवाद। अरे मोनी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं दिख रही है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये कहाँ की एक्सरसाइज है? यही एक्सरसाइज होती है। नहीं, तुम्हें एक्सरसाइज जानना है क्या होती है? हाँ, चल तुम्हें बताओ मेरे दोस्त। हाँ, एक्सरसाइज से ज्यादा अच्छा होता है योगा।
योगा में तुम्हें प्राणायाम, शीर्षासन और आदि करने चाहिए। तुम इसके बारे में पढ़ो अगर तुम्हें अच्छा लगता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, तुमने सही बोला और मैंने भी सुना था इसके बारे में। मैंने फिट इंडिया मूवमेंट में इसके बारे में पढ़ा। अरे मोनी, आज तुम फिर से वैसे करने लग गए। अरे माफ करना, पर मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया और मेरे को नहीं करना। उससे मेरे को कोई फायदा नहीं। मैं बताऊं तुम्हें, फायदा तो बहुत है। देख रहे हो ना वो टोनी, मोटा सा। ये देखो ये टोनी, ये देखो ये टोनी इतना मोटा हो गया है खा खा के। अगर तुम भी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुम भी उसकी तरह मोटे हो जाओगे। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसलिए ही हमारी भारत सरकार ने ये बनाया है, फिट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया है और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी। अमन, आज खेलने आएगा क्या? हाँ, मैं खेलने आऊँगा। तू साथ में सुनील को भी लेते आना, क्योंकि वो तुम्हारे घर के पास ही रहता है। अरे, तुम्हें नहीं पता कि सुनील बीमार है, इसलिए वह आज स्कूल भी नहीं आया है। मुझे तो पता ही नहीं है। चलो आज शाम को उसके घर उसे देखने चलते हैं। हाँ हाँ। हाय सुनील। हाय रोहित। हाय सुनील। हाय अमन। अरे सुनील, तुम बीमार कैसे पड़ गए? अरे रोहित, कल मैं बाजार गया था। जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत तेज सर्दी हो गई थी और अभी बुखार भी आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम भी हमारे साथ खेलने आया करो, तो तुम भी स्वस्थ हो जाओगे। क्या खेलने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा? हाँ, मुझे और अमन को ही देख लो। हम लोग खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए हम लोग स्वस्थ हैं। चलो सुनील, हम लोग चलते हैं और अपना ध्यान रखना। ठीक है। हाय सुनील। हाय अमन। हाय सुनील। हाय रोहित। सुनील, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम हमारे साथ खेलने चलना। अरे यार, मैं ज़रूर चलता, पर मुझे मेरी मम्मी ने कुछ काम करने को कहा है। कहीं तुम बहाना तो नहीं बना रहे हो? नहीं यार, मुझे भी तुम लोग के साथ जाने का बहुत मन था। तो फिर ठीक है, हम लोग खेलने चले जाते हैं। अच्छा हुआ चले गए, वरना मुझे इन लोग के साथ खेलना पड़ता। रोहित, तुम्हें पता है क्या, सुनील फिर बीमार पड़ गया। क्या? सुनील फिर से बीमार पड़ गया? हाँ, हम लोग उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते थे, लेकिन वह बहाना बनाता था, इसलिए फिर बीमार पड़ गया। हाँ, वो तो है। मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि खेलने से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, मगर वह नहीं माना। लेकिन
हम लोग तो रोज ही खेलने आएंगे ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। हाँ, मैं तो रोज खेलने आऊंगा ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। चलो ठीक है अमन, अब हम लोग घर चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी घर जाता हूँ। अरे सुनील, आज तुम कैसे खेलने आ गए? हाँ, तुम तो कभी खेलने नहीं आते थे। हाँ, आज मैं भी खेलने आया हूँ क्योंकि अब मैं इसका महत्व जान गया हूँ कि इससे हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि तुम सुधर गए और खेलों का महत्व जानने लगे? जिस दिन तुम लोग दोबारा बुलाने आए थे मुझे खेलने के लिए, उस दिन मैं बहाना बनाया था क्योंकि मुझे खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब तो तुम खेलने आओगे ना? हाँ, क्योंकि मैं अब इसका महत्व जान गया हूँ। और देखना, अब तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। खेलने और एक्सरसाइज करने से हम अपने रोगों से मुक्त रह सकते हैं और एक स्वस्थ भारत बना सकते हैं। आज हम फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत एक प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मूवी की प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत है जो कि इस प्रकार है। जवान के एक